Hey, good morning dear students. Welcome you all in today's class. See, yesterday last previous we have seen the mouse fable and the Aesop's fable. मतलब हमने क्या देखा था? एक चूहे की कहानी देखी थी कि how his cousin मतलब एक brown mouse था. He lived in a countryside. वो कहाँ पे रहता था brown mouse? He lived in a countryside and his cousin brother who has lived in a town. So one day he just one day he came to visit his brown mouse मतलब cousin brother को वो मिलने आता था. Then suddenly the town mouse told his cousin brother, the town mouse told his brown mouse, see why you are here? It is very boring. Here food is very boring. You have to come with my place means town. You will enjoy. Okay, who said? The town mouse said to the brown mouse. मतलब जो brown mouse है, जो भूरे कलर का जो भूरा चूहा है, वो उसको मिलने के लिए कौन आता है टाउन से? उसका ब्रदर कजिन आता है. लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका जो टाउन ब्रदर है वो क्या बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों ना तू ही मेरे साथ वहाँ पे चल. तो then they both were decided to go in a town. Okay, टाउन में जाने के बाद वो क्या करते हैं? Come on, tell me. Yes, they saw a large palace. When they entered that house, मतलब वो उसके बाद देखने बाद वो क्या करते हैं? वो entered करते हैं हाउस के बाद. चुपके से वो सीढ़ियों पे चढ़ के डायरेक्ट कहाँ एंट्री करते हैं? इन अ डाइनिंग रूम. एंड दैट टाइम countryside, the brown mouse, he never see the feast like this. मतलब वो कभी इतने सारे जो पकवान है, इतना सारा जो भोजन है, he never see, वो अपने लाइफ में कभी नहीं देखता है. So that's why he did not believe his eyes because he never seen feast like this. Okay, हमने यहाँ तक पढ़ा था. Okay, next. While they were nibbling away, the door opened and in came a man. See, what is the meaning of nibbling? Nibbling means क्या होता है? It's a छोटे छोटे टुकड़े, जैसे हम बोलते हैं ना कि बाइट बोल सकते हैं. बाइट जैसे छोटे छोटे पीस है ना, छोटे टुकड़े, छोटे छोटे बाइट. तो when they were nibbling away, जब वो फीस्ट, वो खाने में से छोटे छोटे टुकड़े कर ले रहे थे, तभी एक डोर ओपन हुआ और डोर ओपन होने के बाद वहां से कौन आया? अ मैन, एक आदमी वहां आया. मतलब ऑब्वियसली who he was? वो टाउन का मतलब he is the owner of that town, है ना, वो वहां का मालिक हो सकता था, मतलब हो सकता है. The two mice hide behind some Swiss cheese. तो when they saw the one man came into the door, so he hide, मतलब छुप गए कहाँ? चीज, you know what is the cheese? वो स्विस चीज के पीछे में वो क्या हो गए? both mice, मतलब वो town mouse and is a country mouse. So they both hide on a Swiss cheese. The man came closer, peered in the fruit bowl. Peered यानी क्या होता है? जैसे ही फिर वो कहाँ पे बैठा? डाइनिंग टेबल पे बैठा. वो जो दोनों चूहे थे वो किसके पीछे छुप गए थे? The Swiss cheese. Then the man came closer, वो और पास आया और peered in the fruit bowl, मतलब फ्रूट बाउल के पास उसने देखा. And took an apple and left, और उसने क्या किया? वो वहां से फ्रूट में से, टोकरी में से उसने क्या उठाया? He just picked, उसने क्या उठाया? He took apple and left. उसने क्या किया? वो वहां से एक एप्पल उठाया और वहां से वो चला गया. All clear said the town mouse. और जैसे ही when he went away, the town mouse said all clear, अभी कुछ खतरा नहीं है, चलो तुम बाहर आ जाओ. Okay, the country mouse मतलब ब्राउन माउस, द कंट्री माउस however was too scared to eat more. उसको बहुत डर लग रहा था because if they found तो क्या होता? Obviously they will kill. So that's why the countryside mouse very
scared, मतलब बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और कुछ सारी चीजें खाने के लिए, was too scared to eat more, मतलब बहुत सारी चीजें खाने के लिए, still he was scared. In the corner a large cat had woken up by all the noise. In the town, the man and as well as the cat sit in the corner and she just woken up, वो उठी वहां से और वो जो भी वो नॉइज, वो भी जो चूहे बिल्ली का, वो चूहे का जो सब कुछ चल रहा था और वो देख रही थी चुपचाप से. ओके, she pounced on the mice, she pounced and the mice, the country mouse squealed. उसने क्या किया, जैसे ही when the cat saw the two mice, मतलब वो जैसे ही कैट ने वो दोनों चूहे को देखा, वो क्या हो गई, पॉन्स, मतलब अटैक किया उसने वो दोनों माउस के, और कंट्री माउस चिल्ला, और जो कंट्री माउस है, जो ब्राउन रंग का माउस था, वो क्या बहुत जोर से चिल्लाया. फिर देन फॉलो मी क्राइड द टाउन माउस एंड दे बोथ डाइव इनटू द माउस हाउस. उसने बोला कि चलो मेरे पीछे आओ. क्राइड द टाउन, मतलब वो रोते रोते टाउन माउस ने बोला कि मेरे पीछे चलो. किसको बोला, द टाउन माउस टोल्ड टू द कंट्री साइड माउस. दे बोथ डाइव इनटू द होल, और वो जैसे ही भाग के वो एक मतलब जो बिल रहता चूहे का, वो एक होल में वो चले गए. ओके, दिस इजंट माय आइडिया ऑफ फन. आपको नहीं लगता कि ये भी जो भी मेरी आइडिया वो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही ज्यादा फनी. द कंट्री माउस स्नीफ, द कंट्री माउस ने क्या, स्नीफ मतलब सूंघना, सेंट जैसे बोलते हैं. आई एम सॉरी कजिन बट आई एम गोइंग बैक टू द पीसफुल कंट्री साइड. तो ये सब होने के बाद द कंट्री साइड माउस टोल्ड हिज ब्रदर टाउन माउस, sorry brother, I can't stay anymore because it is not peaceful for me, it is not habitually for me, so I go back to my countryside. Who said? The brown mouse said to the town mouse. Okay, he waved goodbye to the town mouse and setting off for his comfortable little home under the hedge. उसने बोला कि he wave मतलब हलाया, उसने उसको बाय किया. You can see this picture, see. He went out, he waved goodbye. Okay, he waved, उसने उसको goodbye किया. To the town mouse को उसने goodbye किया and setting off the comfortable, और उसने बोला मतलब वो जाने के बाद बोला कि I am very much comfortable to my countryside and little mouse under the hedge. और मैं जो hedge मतलब जो जहाँ पे वो बाड़े के नीचे रहता था, वही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है, सेफ जगह है. A simple quiet life is much better than rich but dangerous life. उसने बोला कि a simple, बहुत ही सादगी, quiet यानी शांत लाइफ, मतलब सिंपल लाइफ, शांत लाइफ बहुत ही ज्यादा बेहतर है. इट्स अ लग्जरियस बोलो या रिच लाइफ से और डेंजरस लाइफ से. सी ये या फिनिश अवर स्टोरी. सो आपको समझ में आया इसमें व्हाट द राइटर सेड टू अस. उनको क्या बताना था कि जो भी हम कंट्री साइड में, जो भी हम गांव में रहते थे, इट इज वेरी पीसफुल एंड वेरी सेफ लाइफ. मतलब वहाँ पे चकाचौंध नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रश नहीं है, है ना. सो वी कैन इजीली सर्वाइव, वी हैव टू देयर पीस, वी लिविंग इन अ पीसफुल. बट इन अ टाउन वो बहुत ही हेक्टिक लाइफ रहती है, बहुत ही बिजी शेड्यूल. देयर इज सो मच पोल्यूशन, है ना. तो वहाँ पे कैसे किया है, इट्स अ कंपैरिजन, इट्स अ कंट्री साइड और टाउन, मतलब सिटी और टाउन को वहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन. दैट्स व्हाई इन द वार्म अप वी सी द 4 पिक्चर, कंट्री साइड एंड द टाउन. एंड हमारे जो माउस फेबल भी, माउस टेल में भी क्या था, सेम था. मतलब यू हैव टू कंपेयर द सिटी एंड टाउन. ओके, अंडरस्टूड, आपको समझ में आया. सो डोंट कंफ्यूज अबाउट द टाउन माउस एंड कंट्री साइड माउस. ओके, कंट्री साइड माउस एंड टाउन माउस हु हैड इनवाइट टू द टाउन, है ना. वहाँ का वो दिखा रहे थे कितना अच्छा भोजन है, कितना अच्छा महल है, कितने अच्छे अच्छे पकवान मिलता है. बट इट इज ऑल्सो डेंजरस, मतलब वो सब करने के लिए वी हैव टू गॉन थ्रू इन अ डेंजरस वे. ओके, सो दैट्स व्हाई ही लेफ्ट
he just waved to goodbye and उसने बोला कि I am more comfortable with my preschool and with my which one hedge, under the hedge. Okay, so now we have completed our lesson number 2. So we will see the word bank. See words meaning fable. I told you it's a story, short story with a moral lesson for all. Okay. Hedge मैंने row of bushes. कंट्री साइड रूरल एरिया, मैंने बोला था कि गांव के मतलब टाउन के आजू बाजू का मतलब एक गांव ही बोल सकते हैं. हॉरिबल बहुत ही ज्यादा बैड मतलब भयंकर. बोरिंग डल. स्क्रैम्बलिंग रशिंग हरिंग है ना. डेंजरस मतलब कॉजिंग हार्मफुल हम जब जिसे बोलते हैं. स्क्वीड मतलब बहुत सारा चिल्लाना. निबलिंग छोटे छोटे बाइट. स्मॉल आई टोल्ड यू सी द बाइट. देन पियर्ड यानी बहुत ही पास से क्लोजली. स्केयर्ड डर लगना. फ्राइटन. स्पाइड मतलब नोटिस ध्यान में रखना. पाउंड अटैक सडनली अटैक करना. डाइव मतलब जंप करना. एंड पीसफुल मतलब काइंड. सी अपोजिट. बिगिन मीन्स स्टार्टिंग. इट्स अ एंड. बिफोर मतलब पहले. आफ्टर बाद. कंफर्टेबल है अनकंफर्टेबल मतलब कंफर्टेबल महसूस करना. अंडर और अबाउ. गिव टेक ऑब्वियसली. देना घेना. देना लेना. बिहाइंड मतलब पीछे. इन फ्रंट यानी सामने. ओपन खोलना. क्लोज बंद. बोरिंग मतलब बहुत बोर एंड एक्साइटमेंट उत्साह. Okay, so understanding and better answer the following questions. Why did town mouse visit the countryside? मतलब जो why did town mouse ने countryside में क्यों visit किया? क्योंकि उसका cousin brother रहता था कौन? brown mouse. Okay. Okay. How did the brown country mouse look after the town mouse? See, these questions I will send you PDF. Yeah, I will write on a blackboard. Okay, so we will see the page number 26. Think and answer. What is the lesson you learned from this story? आपने इन स्टोरी में से क्या लेसन लिया? क्या मतलब क्या लगा आपको? क्या पार्ट पढ़े आप? You have to write it as a homework for you. Let's learn grammar. See, underline the nouns. Please just concentrate what I'm reading. Underline the nouns and circle the actual words verb in the following sentence. One is done for you. See, there is a 5 questions are below. You have to underline the nouns. Nouns. Nouns को आपको क्या करना है? Underline करना है. You have to circle the action words. एक already उन्होंने दिया है. See, mice obviously the noun and lived in a action. Lived जैसे circle दिया and in a holes. Okay, it's a underline. So same. The sun rise in the east. We have to solve one by one. We're going to have the A. Exercise A. First क्या है? The first हो गया. It's a second. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Okay, so we have to underline the noun and circle in a action. So obviously nouns in a sun. Sun is a noun, is a name. Sun. Okay, and underline. हमको किसको ये करना है? एक्शन को हमको क्या करना है? Come on, tell me. Okay. So you have to. Sun is a noun and rises को क्या करना है हमको? It's a verb. Action verbs means verb है वो. और east also it's a noun. East west it is a particular noun. So that's why in the sentence we found both nouns and one is a verb. So what is the verb? Is a rises and what is the noun? Sun and is. Okay. Third one. So third, the moon shines. The moon shines at night.
मतलब जो मून है वो चांद है कब शाइन्स करता है, रात को। तो ऑब्वियसली मून इज व्हाट, इज अ नाउन एंड शाइन्स is a verb and night is a noun. Understood? So night and moon is a nouns and shines is a verb. Understood? Okay. Fourth one. The clock tells us the time. घड़ी हमको क्या बताती है, घड़ी हमको टाइम बताती है। तो ऑब्वियसली द क्लॉक क्या है, इट्स अ नाउन, टेल्स है वर्ब एंड टाइम है वो भी हमको इट्स अ नाउन। आगे समझ में, क्लॉक टेल्स मतलब बताना, शाइन मतलब शाइन करना है ना, राइज उगना, हमें पता राइज वैसे शाइन। ओके, सो टेल्स टोल्ड लाइक दिस, इट इज अ वर्ब। तो घड़ी हमको क्या बताती है, घड़ी हमको टाइम बताती है। ओके, फिश मछली, फिश स्विम, सबको पता है स्विम का मीनिंग क्या है, स्विम इज अ क्या है, स्विम तैरना। द स्विम इन द रिवर, obviously river it is a name, that's why we have to underline and swim is a what, swim is a verb, swim मतलब तैरना, हम बोलते हैं ना swim, I swim this time. Okay, the fish swim in the river, मछली क्या करती है, नदियों में तैरती है। Obviously fish swim in the river, we have to underline the river. Why? Because the river is a action verb, means verb, and swim is a nouns. Okay, come on, you have to write down in your textbook. I will give you 5 minutes. Come on, hurry up. Okay, so here we have solved the exercise A. Okay, so tomorrow we will see the exercise B. Okay, so till then take care, bye bye. But please read the lesson and as well as just concentrate and don't miss your spellings. Okay, so okay, see you soon, bye bye, take care.